जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 6 श्लोक 41। प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुशिष्टवा शाश्वतीः समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो अभिजायते। ऐसे पुरुष के संबंध में एक और भी विलक्षण बात है। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। योग भ्रष्ट पुरुष योग रूपी महान पुण्यों के प्रभाव से ऐसे लोकों में नहीं जाते जहां वे भोग में फंसकर दुर्गति को प्राप्त हो जाएं। भोगों में आसक्ति ही उन लोकों में बहुत वर्षों तक रहने का कारण है, क्योंकि कर्म और उनके फल में ममता और आसक्ति रखना ही कर्म फल का हेतु बनना है। अतः जिस साधक के अंतःकरण में जितनी आसक्ति छिपी रहती है, उतने ही समय तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल भोगने के लिए वहां रहना पड़ता है। जिनमें आसक्ति अधिक होती है वे अपेक्षाकृत अधिक समय तक वहां रहते हैं, और जिनमें कम होती है वे कम समय तक। जिनमें भोगासक्ति नहीं होती वे वैराग्यवान योग भ्रष्ट वहां न जाकर सीधे योगियों के कुल में ही जन्म लेते हैं। The unsuccessful yogin, after many years of enjoyment on the planets of the pious living entities, is born into the family of righteous people or into a family of the rich and prosperous. Om. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 6 ശ്ലോകം 41. യോഗാഭ്യാസം നടത്തുന്ന ആളുകളെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. യോഗാഭ്യാസം നേടിയ ആളുകൾ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ലോകം അഥവാ സ്വർഗം പോലുള്ള ലോകം പ്രാപിക്കുകയും അവിടെ അനേകകാലം ജീവിക്കുകയും അതിനുശേഷം ശുദ്ധമായ പെരുമാറ്റമുള്ള കുലീനരായ മനുഷ്യരുടെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം യോഗഭ്രഷ്ടരായ ആളുകൾ യോഗയുടെ രൂപത്തിലുള്ള മഹത്തായ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അത്തരം ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. അവർ സുഖങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി നിർഭാഗ്യം കൈവരിക്കുന്നു. സുഖങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയാണ് ആ ലോകങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളോളം തുടരാൻ കാരണം. കർമ്മത്തോടും അതിൻ്റെ ഫലത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ആസക്തി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കർമ്മത്തിന് കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് ഒരു അന്വേഷകന്റെ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ ആസക്തി ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ തൻ്റെ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം ആസ്വദിക്കാൻ അയാൾക്ക് അവിടെ കൂടുതൽ സമയം താമസിക്കേണ്ടി വരും. കൂടുതൽ ആസക്തിയുള്ളവർ താരതമ്യേന കൂടുതൽ കാലം അവിടെ തങ്ങും. കുറവ് ആസക്തിയുള്ളവർ കുറഞ്ഞ സമയത്തേക്ക് അവിടെ തങ്ങും. സുഖത്തോട് ആസക്തിയില്ലാത്തവർ അവിടെ പോകാതെ തന്നെ നേരിട്ട് യോഗികളുടെ കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పది శరణం. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరమసంత మహాత్మా శ్రీ యశ్పాజీ మహారాజ్ వారిచే ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 6 ఆత్మ సంయమ యోగము శ్లోకము 41. ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోక నుషిత్వా శాశ్వతీ సమాహ శుచీనాం శ్రీమతాంగేహే యోగభ్రష్టో విజాయతే. ఇటువంటి పురుషునికి సంబంధించి మరొక విలక్షణ విషయం ఉన్నది. యోగభ్రష్టుడైన పురుషుడు పుణ్యవంతమైన లోకాలను అనగా స్వర్గాది ఉత్తమ లోకాలను పొంది అందులో అనేక సంవత్సరాలు నివసించి పిమ్మట శుద్ధాచరణకు పరులైన శ్రీమంతుడింట్లో జన్మిస్తాడు. యోగభ్రష్టుడైన పురుషుడు యోగమనే గొప్ప పుణ్య ప్రభావంచే ఎక్కడైతే భోగములందు చిక్కుకొని పోయి దుర్గగతిని పొందుతాడో అటువంటి లోకాలకు వెళ్ళడు. భోగాలు ఎందుండే ఆసక్తి ఆయా లోకాల్లో చాలా కాలం ఉండేందుకు కారణం. ఎందుకనగా కర్మ మరియు వాటి ఫలితమందు మమకారము ఆసక్తి ఉండుడిచే
కర్మఫలానికి కారణం అవుతుంది. అందుచేత ఏ సాధకుని అంతఃకరణలో ఎంత ఆసక్తి దాగి ఉంటుందో అంతకాలం వరకు అతడు శుభకర్మల ఫలితాన్ని అనుభవించేందుకు అక్కడ ఉండవలసి ఉన్నది. ఎవరిలో ఆసక్తి ఎక్కువగా ఉంటుందో వారు ఆశించిన దానికన్నా ఎక్కువ సమయం వరకు అక్కడ ఉంటారు. ఎవరిలో ఆసక్తి తక్కువగా ఉంటుందో వారు తక్కువ సమయం వరకు అక్కడ ఉంటారు. ఎవరిలో భోగాసక్తి అసలు ఉండదో వైరాగ్యవంతులైన ఆ యోగభ్రష్టులు అక్కడికి వెళ్లకుండా తిన్నగా యోగుల కులంలో అంటే యోగుల వంశంలో జన్మిస్తారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై బసవరాజ్. प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। एहन मनुख के संबंध में एकटा आर विलक्षण गप अछि। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यात्मा सबके लोक में माने स्वर्गादि उत्तम लोक के प्राप्त क क ओतऽ बहुत बर्ख धैर्य वास करैत अछि आ तकर बाद शुद्ध आचरण बला श्रीमान पुरुष सबके घर में जन्म लैत अछि। योग भ्रष्ट पुरुष योग रूपी महान पुण्य के प्रभाव से एहन लोक में नहीं जाइत अछि जतऽ ओ भोग में फंस कर दुर्गति के प्राप्त भ जाय। भोग सब में आसक्तिये एहन लोक में बहुत बर्ख धैर्य रहबाक कारण बनैत अछि। कियाक तऽ कर्म आ ओकर फल में ममता आ आसक्ति राखब कर्म फल प्राप्ति के हेतु बनैत अछि। तैं जय साधक के अंतःकरण में जतेक आसक्ति रहैत अछि ओतेक काल लेल ओकरा अपन शुभ कर्म के फल भोगबा लेल ओतऽ रहऽ पड़ैत अछि। जकरा में आसक्ति बेसी होइत अछि ओकर अपेक्षा बेसी काल लेल ओतऽ रहैत अछि आ जकरा में कम होइत अछि ओ कम काल लेल आ जकरा में भोगासक्ति नहीं रहैत अछि एहन वैरागवान योग भ्रष्ट ओतऽ नहीं जाइत अछि। ओ तऽ सोझे योगी सबके कुल में जन्म लैत अछि। जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अध्याय 6 श्लोक 41. अशा माणसाबद्दल आणखी एक विचित्र गोष्ट अशी आहे की योगाने भ्रष्ट झालेला मनुष्य सद्गुणींच्या जगात पोहोचतो, म्हणजेच स्वर्गासह सर्वोत्तम लोकामध्ये त्यात अनेक वर्ष राहतो आणि नंतर शुद्ध आचरणाने सद्गुणी लोकांच्या घरात जन्म घेतो. योगाने भ्रष्ट झालेले लोक योगाच्या रूपातील महान सद्गुणांच्या प्रभावामुळे अशा जगात जात नाहीत जिथे ते सुखामध्ये अडकतात आणि दुःखात संपतात. सुखांशी असलेली आसक्ती ही त्या जगात अनेक वर्षे राहण्याचे कारण आहे. कारण कर्माबद्दल आणि त्यांच्या परिणामाबद्दल प्रेम आणि आसक्ती असणे हे कर्मांच्या परिणामाचे कारण आहे. म्हणून साधकाच्या विवेकात जितकी जास्त आसक्ती असेल तितकी जास्त वेळ त्यांना त्याच्या सत्कर्माचे फळ उपभोगण्यासाठी तिथेच राहावे लागेल. ज्यांची आसक्ती जास्त असते ते तुलनेने जास्त काळ तिथे राहतात आणि ज्यांची आसक्ती कमी असते ते कमी काळासाठी, ज्यांना आसक्ती नसते, ज्यांना आनंद उपभोगण्याची वैराग्य वृत्ती असते ते तिथे जात नाहीत, तर थेट योगींच्या कुटुंबात जन्म घेतात. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली. सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा.